Good morning, students. This is Rushali Singh, your business studies teacher. Welcome to online session class. So, students, in our today's class, we will continue the chapter business services. Now, we will be discussing about telecom services. टेलीकॉम सर्विसेज से सीधा सीधा मतलब है कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Telecom services are the backbone of every business activity. In the absence of telecom services, every business activity will remain as a dream only. There are lots of development in convergence of telecom, IT, electronic and media industry worldwide. जो हमारा ये टेलीकॉम सर्विस है ये बहुत ही हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराता है. इससे जो कन्वीनियंस हमें मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है. आप एक जगह से दूसरी जगह बात कर सकते हो, अपने बिज़नेस को और ज़्यादा आप फ्लरिश कर सकते हो. ये बहुत ही कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है बिज़नेस मैन को या एंटरप्रेन्योर को, ये जहाँ भी ये सर्विस रहती है. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड telecom policy framework in 1999 and broadband policy in 2004 to realize the dream and India's vision of becoming IT superpower by the year 2025. Now we will discuss various types of telecom services. First of all is cellular mobile service. It includes all mobile telecom services including voice, non-voice, message, data service and PCO etc. They can provide direct interconnectivity with any other type of telecom service provider. यहाँ पे जो सेलुलर मोबाइल सर्विस है, जो हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं उसकी बात हो रही है. ये हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं थ्रू वॉइस, थ्रू नॉन वॉइस मैसेजेस आप कर सकते हो, आप मैसेजेस कर सकते हो, डेटा सर्विस ले सकते हो और पीसीओ एक्सेट्रा के बारे में तो हम जानते हैं. और क्या करते हैं ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं दूसरे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से. नेक्स्ट इज़ फिक्स्ड लाइन सर्विसेज. Fixed line services, these are primarily connected through fiber optic cable laid across the country. They provide interconnectivity with other type of telecom services. ये फाइबर पे होते हैं, ये जो ऑप्टिक केबल्स होते हैं उसके थ्रू जो है कनेक्टिविटी यहाँ पे जुड़ी होती है. these are all type of fixed services including voice and non-voice messages and data services to establish linkages for long distance traffic. These utilize any type of network equipment primarily connected through fiber optics cable laid across the length and the breadth of the country. They also provide interconnectivity with other type of telecom services. अभी जियो जो है रिलायंस इंडस्ट्री वो पूरे कंट्री में अपना जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स है ये बिछा रहे हैं बेहतर कनेक्टिविटी के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज़ केबल सर्विस. दीज आर linkage and switched services within licensed area or operation to provide entertainment services. It includes two-way communications, that is voice data and information services. Offering services through the cable network would be similar to providing the fixed services. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइसेंस एरिया होता है ऑपरेशन का जो इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए है. केबल सर्विसेज आपको अगर याद हो तो पहले जो टीवी होती थी, टीवी पे केबल्स लगे होते थे और उसके थ्रू चैनल्स आते थे. ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि जो केबल टीवी हम देखा करते थे वही है हमारा केबल सर्विस. नाउ VSAT services. Now what is VSAT services, or we can call it very smart aperture terminal. VSAT is a satellite based communication service. It offers business and government
agencies are highly flexible and reliable communication solution in urban as well as rural areas. VSAT offers reliable and uninterrupted services. It can be used to provide newspaper online, market rates and tele-education even in the most remote area of our country. वीसैट जो है वो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस है। आपने देखा होगा कि नेशनल जो हमारा डीडी नेशनल जो चैनल आता है उसमें हमारे कई चैनल्स ऐसे आते हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं आपके 1 से लेके क्लास 12 तक के। उस पर पूरे टाइम कुछ ना कुछ वो टॉपिक उठा के आपके सिलेबस पर का ही उसमें चलाते रहते हैं। जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसको वो रन करते रहते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है कि सैटेलाइट के थ्रू आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो। एक और हमारे पास वे है कम्युनिकेशन का, टेलीकॉम सर्विस का, दैट इज़ डीटीएच सर्विसेज। नाउ हम सब जानते हैं डीटीएच सर्विसेज के बारे में। हम सबके घरों में डिश टीवी है या फिर टाटा स्काई है, ये सारी जो सर्विसेज हर घर में पाई जाती हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है। इट इज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेलुलर कंपनीज। To receive this service, one needs a small dish antenna and a set-top box. These services are provided by DTS service providers and consist of a banquet of multiple channels. These channels can be viewed on television without being dependent on cable नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। पहले जो हम वो केबल पे देखते थे, अब वही हम डिश टीवी या फिर टाटा स्काई, जो ये हमारा डीटीएच सर्विस है, डायरेक्ट टू होम जिसे कहते हैं, वो प्रोवाइड करा देते हैं। इसके लिए हमें एंटीना चाहिए होता है और एक सेट टॉप बॉक्स चाहिए होता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि मूवमेंट की सर्विस, ऐसी चीज़ जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकते हैं? रेल है, रोड है, एयर है, बाई सी या वाटर है। तो ये जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है? हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंपैरेटिव एंड advantages and disadvantages of different modes of transportation in earlier classes. Their services are considered to be important for business since speed is of essence in any business transaction. Also, transportation remove the hindrance of place. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करता है। इट मेक्स गुड अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम वन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. We need to develop our transportation system to keep pace with the requirement of our economy. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमें डेवलप करना होगा ताकि हम इकॉनमी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। Both government and industry need to be proactive and view the effective functioning of this service as a necessity for providing a lifeline to a business service. In sector like agriculture and food, there are massive losses of products in the process of transportation and storage. एग्रीकल्चर और फूड की हम बात करते हैं, तो अगर फूड का हम जानते हैं कि फूड की ड्यूरेशन होती है एक, कि वो कब तक खाया जा सकता है या फिर हम उसको कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन में लेट होती है तो वो जो प्रोडक्ट है, जो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो ट्रांजिट में ही ख़राब हो जाएगा। तो कोई भी बायर या फिर सेलर या सप्लायर जो होगा उसे रिसीव नहीं करेगा, तो उसके लिए ये यहाँ पे जो बिज़नेस होगा वो फेल हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा एसेंस है हमारे बिज़नेस एक्टिविटी का। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग वेयर हाउसिंग. Storage has always been an important aspect of economic development. The warehouse was initially viewed as a static unit for keeping and storing goods in scientific and systematic manner so as to maintain their original quality, value and usefulness. गुड्स को जो है, हम ये पहले भी वेयर हाउसिंग का पढ़ चुके हैं कि गुड्स को स्टोर किया जाता है ताकि वो टाइम का हिंड्रेंस हम रिमूव कर सकें। जब उनकी ज़रूरत है हम तब उनको सेल कर सकें।
कई कई हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार होते हैं, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो वीट का, राइस का, वो साल में एक बार होते हैं पर उनका कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर होता है। ऐसे गुड्स को जो है गवर्नमेंट या फिर बिजनेस ओनर जो है उसे जो है स्टोर करके रखना होता है, तो वेयर हाउसिंग उसमें हमारी हेल्प करता है। द टिपिकल वेयर हाउस रिसीव मर्केंटाइज बाय रेल, ट्रक्स और बुलॉक कार्ट। जो वेयर हाउस होते हैं उनको कहाँ कहाँ से जो है प्रोडक्ट्स मिलते हैं स्टोर करने के लिए, वो रेल से भी आते हैं, ट्रक से भी आते हैं, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो ब्लॉक से भी लेके आते हैं, मतलब बैलगाड़ी से भी लेके आते हैं। द आइटम वर मूव मैनुअली टू द स्टोरेज विद इन द वेयर हाउस एंड हैंड पाइल्ड इन सैक ऑन द फ्लोर। वेयर हाउस में रखते हैं और उसमें बोरे के ऊपर बोरे लगा के रख दिए जाते हैं। दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कस्टम्स एक्सेट्रा इन इंडिया। Today's warehouses have ceased to be mere storage service provider and have really become logistical service provider in a cost efficient manner. अब सिर्फ जो है ये स्टोरेज प्रोवाइडर नहीं रह गए हैं, अब ये लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर भी हो गए हैं। लॉजिस्टिकल का मतलब है कि जो गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने का काम होता है। दिस इज़ that is making available the right quantity at the right place in the right time in the right physical form at the right cost। यहाँ पे आपका क्वांटिटी भी राइट होना चाहिए, आपका प्लेस भी राइट होना चाहिए, टाइम भी राइट होना चाहिए और उसका फिज़िकल फॉर्म भी राइट होना चाहिए, एट द राइट कॉस्ट भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो लॉजिस्टिकल सर्विस प्रोवाइडर बन जाता है। मॉडर्न वेयर हाउसेस are automated with automatic conveyors, computer operated cranes and cliffs for moving goods, and also uses of logistical automation software for warehouse management। अब जो वेयर हाउसिंग की हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ हम कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ करके नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते ताकि हम वेयर हाउस का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। तरह तरह की मशीन्स आ गई हैं जो सामान की लिफ्टिंग में हेल्प करती हैं। नाउ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। फर्स्ट इज़ प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ऑपरेटेड, ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड, सच एज रिटेल चेन स्टोर्स और मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। ये ऐसे वेयर हाउसेस होते हैं जिसमें कंपनी अपना खुद का ही सामान रखती है, वो खुद सामान बनाती है और खुद सामान स्टोर करती है। एज अ जनरल रूल, एन एफिशिएंट वेयर हाउस इज़ प्लान्ड अराउंड अ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू encourage maximum efficiency of product movement. The benefit of private warehousing include control, flexibility, and other benefit like improved dealer relations. Next is public warehouses. Public warehouses can be used for storage of goods by trader, manufacturer, or any member of the public after the payment of a storage fee or charges. जो हमारी पब्लिक वेयर हाउसेस हैं उसका यूज़ कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ चार्जेस या फिर फ़ी का पेमेंट करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट रेगुलेट द ऑपरेशन ऑफ दीज वेयर हाउसेज बाई इशूइंग लाइसेंस फॉर देम टू प्राइवेट पार्टीज़। गवर्नमेंट जो है इनके रेगुलेशंस को इनके ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है जब वो उन वेयर हाउसेस के लाइसेंस देती है प्राइवेट पार्टीज़ को। ये वेयर हाउसेस प्राइवेट लोगों के ही होते हैं, बट ये गवर्नमेंट वेयर हाउस तब बनते हैं जब ये जो प्राइवेट पर्सन्स हैं जिसका वेयर हाउस है वो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेता है तब। इसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से भी बेनिफिट्स मिलते हैं। द ओनर ऑफ द वेयर हाउस स्टैंड एज एन एजेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रोप्रिएट केयर ऑफ द गुड्स। अगर आपके वेयर हाउस में सामान रखा है तो आपको उसकी अप्रोप्रिएट केयर करनी होगी। दीज वेयर हाउसेज प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल एंड रोड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स। Small manufacturers find it convenient as they cannot afford to construct their own warehouses.
स्मॉल जो बिजनेसमैन है या फिर कोई भी डीलर है या फिर कोई भी फार्मर है, उनके लिए ये पब्लिक वेयर हाउसेस बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि वो अपने प्राइवेट वेयर हाउसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। द अदर बेनिफिट इंक्लूड्स flexibility in the number of location, no fixed cost, and capability of offering value added services like packaging and labeling. Now the next is bonded warehouses. Bonded warehouses are licensed by the government to accept import goods prior to payment of tax and custom duty. ये बॉन्डेड वेयर हाउस को लाइसेंस मिलता है, आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट, उन्हें गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि वो इम्पोर्टेड गुड्स को ले आए अपने यहाँ, इस और उनकी जब तक कस्टम पे टैक्स नहीं हुआ है, उन्होंने अभी तक जो है पेमेंट नहीं किया है टैक्स का, कस्टम ड्यूटी नहीं पे की है, उसके पहले वो ले आके उसे वेयर हाउस में रख सकते हैं। दीज आर गुड्स विच आर imported from other countries. Importers are not permitted to remove goods from the docks or the airport till the custom duty is paid. ये जो बॉन्डेड वेयर हाउसेस होते हैं या तो ये पोर्ट्स पे होंगे या तो ये जो है हमारे एयरपोर्ट्स पे होंगे, ऐसी जगह पे होंगे जहाँ बाहर की कंट्री से आके ये सामान रखे जाते हैं और फिर जब कस्टम ड्यूटी से होके गुज़रते हैं, वहाँ पे टैक्स का पेमेंट होता है, तब ये जो है आगे निकलते हैं। At times, importers are not in a position to pay the duty in full or does not require all the good immediately. The goods are kept in bonded warehouse by the customs authorities till the custom duty is paid. These goods are said to be in bond. कभी कभी जो हमारा बिजनेसमैन है या इम्पोर्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो एक ही बार में पूरा टैक्स नहीं पे कर पाता है या फिर उसको उस समय पूरे गुड्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो उन गुड्स को उन्हीं वेयर हाउस में रहने देता है। जब वो कस्टम क्लियर करेगा तब उसके गुड्स आगे जा पाएंगे। दीज वेयर हाउसेज हैव फैसिलिटीज़ फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग. Importer may bring their buyers for inspection of goods and repackage them according to their requirement. Thus, it facilitates marketing of goods. वहाँ पे ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्लेंडिंग सब हो सकता है और आप अपने बायर्स को वहाँ पे गुड्स के इंस्पेक्शन के लिए भी बुला सकते हो, बायर्स को बुला के गुड्स को दिखा भी सकते हो और उसकी रीपैकेजिंग भी करा सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। Goods can be removed in part as and when required by importer and buyer, and import duty can be paid in installments. आप जैसे जैसे गुड्स ले जाओगे वैसे वैसे आप इम्पोर्ट ड्यूटी के इंस्टॉलमेंट्स भी पे करोगे। द importer need not block funds for payment of import duty before the goods are sold or used. Even if he wishes to export the goods kept in the bonded warehouse, he may do so without payment of custom duty. Thus, bonded warehouse facilitate interport trade. इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि आप एक जगह से सामान मंगा रहे हो, उसे एक कंट्री से सामान मंगा रहे हो उसे दूसरी कंट्री में बेचने के लिए, तो ये सर्विस भी हमारे वेयर हाउसिंग बॉन्डेड वेयर हाउस प्रोवाइड कराते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट वेयर हाउसेस. These warehouses are fully owned and managed by the government. The government manages them through organizations set up in the public sector. For example, Food Corporation of India, State Trading Corporation and Central Warehousing Corporation. तो गवर्नमेंट जो है इन्हें बनवाती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और ये गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस. Some marketing cooperative societies or agriculture cooperative societies have set up their own warehouses for the member of their cooperative societies. जो cooperative society हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग होते हैं वो वेयर हाउसेस बनवाते हैं ताकि उनकी सोसाइटी के लोग उसका यूज़ कर सके। नाउ द फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग. Consolidation. In this function, the warehouse receives and consolidates
material and goods from different production plants and dispatches the same to a particular customer on a single transportation ships। मतलब जगह जगह से चीज़ें आती हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को वो एक करते हैं, उनको कंसोलिडेट करते हैं, मिलाते हैं और फिर उसे आगे भेजते हैं। नेक्स्ट इज break the bulk। The warehouse perform the function of dividing the bulk quantity of good received from production plant into the smaller quantities. These smaller quantities are then transported according to the requirement of client to their places of business। अब ब्रेक द बल्क में इसका उल्टा होता है। जैसे एक जगह से बहुत भारी भरकम सामान आ गया है तो वेयर हाउस में उसे छोटे छोटे पार्ट में करेंगे और डिफरेंट जगह एक्सपोर्ट कर देंगे या जहां उन्हें भेजना होगा उसे भेज देंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक पाइलिंग। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इज द सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड टू सेलेक्ट बिजनेसमैन। Goods or raw material which are not required immediately for sale or manufacturing are stored in warehouses. They are made available to business depending on customers' demand। जब डिमांड होती है या फिर जब ज़रूरत होगी मैन्युफैक्चरर को तब जो है तब तक के लिए गुड्स जो है वेयर हाउस में स्टोर कर दिए जाते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच आर हार्वेस्टेड एट स्पेसिफिक टाइम्स विद सब्सिक्वेंट कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर विल also need to be stored and release in lots। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की हमने बात की थी कि वो एक बार जो है कलेक्ट होते हैं, कल्टीवेट होते हैं, उसके बाद थ्रू आउट द ईयर उनका कंजम्पशन होता है। ये जो है फंक्शन हम स्टॉक पाइलिंग का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू एडेड सर्विसेज। Certain value added services are also provided by the warehouses such as in transit mixing, packaging, labeling। ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वेयर हाउस प्रोवाइड कराते हैं। Goods sometimes need to be opened and repackaged and labeled again at the time of the inspections by prospective buyers। Grading according to quantity and dividing good to smaller lots is another function। तो वेयर हाउस में आप वैल्यू एडेड भी होती है, रीपैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, ट्रांजिट मिक्सिंग होती है और अगर बायर के हिसाब से उसकी लेबलिंग्स को भी चेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबलाइजेशन। बाय एडजस्टिंग द सप्लाई ऑफ गुड विद द डिमांड सिचुएशन वेयर हाउसिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। Thus prices are controlled when supply is increasing and demand is slack and vice versa। ये हमने पढ़ा हुआ है इकोनॉमिक्स में भी कि ये सप्लाई को मेंटेन करते हैं और चीज़ों को जो है सप्लाईज़ की मेंटेन करते हैं वेयर हाउस में ताकि जब उनकी डिमांड आए तो वो उसे रिलीज़ कर सके। नेक्स्ट इज़ फाइनेंसिंग। वेयर हाउस ओनर एडवांस मनी टू द ओनर ऑन सिक्योरिटी ऑफ गुड्स एंड फर्दर सप्लाई गुड ऑन क्रेडिट टर्म्स टू कस्टमर। क्रेडिट की भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नाउ हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये सारी जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करा रही है। अटल पेंशन योजना की बात करें, दिस स्कीम इज ऑफर्ड टू इंडिविजुअल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40। दिस द इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द स्कीम until he or she attain the age of 60 years। The scheme act as an investment for availing ओल्ड एज पेंशन। आप 18 से लेकर 40 साल तक आप जो है कुछ कंट्रीब्यूट करिए, कुछ आप दीजिए और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो उसके बाद आपको ओल्ड एज पेंशन मिलने लगेगी। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दिस स्कीम ऑफर एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी कवर ऑफ 2 lakhs एट अ प्रीमियम ऑफ 12 per year। सालाना 12 रुपये आप जमा करिए और आपको डिसेबिलिटी या फिर कोई एक्सीडेंट पे आपको 2 लाख तक का जो है इंश्योरेंस मिल सकता है। एनी इंडिविजुअल हु विल इन अ सेविंग अकाउंट कैन बी एनरोल दिस स्कीम। किसी के पास भी जिसके पास सेविंग अकाउंट है वो इस स्कीम को ले सकता है।
नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये तो हम बहुत ही पुरानी योजना है। इसमें आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुल जाएगा ज़ीरो बैलेंस में। इसमें आपको रुपए ATM कम डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जो आपको एक्सीडेंटल और लाइफ कवर देगा। 1 लाख रुपए, और आपको 1 लाख रुपए एक्सीडेंट पे, और लाइफ कवर आपका 30,000 रुपये तक आपको मिलेगा। और ये वीकर सेक्शन के लिए, सोसाइटी की वीकर सेक्शन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दिस स्कीम ऑफर अ प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस कवर of 2 lakhs to the dependent of the policy holder in the event of his death with the premium of 330 rupees per year। 330 रुपये आप हर साल जमा करिए, और पर्टिकुलर पर्सन की डेथ के बाद उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पे दिए जाएंगे। इसको कोई भी इंडिविजुअल करा सकता है जिसकी उम्र 18 से लेकर 70 साल की है और उसका सेविंग्स अकाउंट है। Now there are different types of insurance: health insurance, motor vehicle insurance, Bulgari insurance, cattle insurance, crop insurance, sports insurance, Amartya Sen शिक्षा योजना, and next is राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। ये सारी जो हैं हमारे डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस हैं जो अलग अलग चीज़ों पे हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे। We will talk further in the class. Thank you.